A very good afternoon and welcome all of you to this class on current affairs. Today the class is starting at 2:37. We are 7 minutes late. Now, we had covered Child Adoption Resource Authority, Child Adoption Regulatory Authority rather. We are supposed to cover the institutions under Child Adoption Resource Regulatory Authority, right? Anybody having any doubt? So, the institutions under CARA. Let me just pull it out. Child Welfare Committees. The heading we had written, Child Welfare Committee. According to the Act, each district shall establish a Child Welfare Committee. Good afternoon, Arshika. Each district shall establish one or more child welfare committees to deal with the children who need care and protection. According to the Act, next bullet point, to deal with the children who need care and protection. To deal with the children who need care and protection. Next bullet point, according to the Act, a person will not be able to join the CWC if the person has, a person will not be able to join the CWC if the person has colon in bracket, after colon in the same line, please write down the qualifications, disqualifications. Got it? So this is how you are putting a colon. If the person has, then you are writing disqualifications, then we are writing the disqualifications, right? Number 1, number 2, number 3. These are what we are going to write are the bars on a person, right? Now, if he has any pending record of violation of human rights or child rights, if he or she has any pending record of violation of human rights or child rights, you know, as we are progressing as a country, civilized country, as we are adding more and more number of years to our independence since we got independent, right? We are having a separate chapter on child rights now, gender rights, right? So the things are getting compartmentalized, the vulnerable sections also are having rights, then old age citizens. These are all signals of evolution of a country's civilization, right? Has a pending record of violation of human rights or child rights, semicolon. Number 2, has been convicted of an offence that involves moral turpitude. That involves moral turpitude. Third, has been removed or dismissed from the service of the central government. Has been removed or dismissed from the service of the central government or any state government. Like if an IAS officer is booked for corruption charges, then that is why they avoid dismissal. Good afternoon, Yunish Khan, Saranda. So we have started with those who are coming late. We have started with the meaning of child welfare committees and we are writing their disqualifications now. Number 1, number 2, then number 3.
Number 3 is has been removed or dismissed from the service of the central government or any state government or any other government undertaking. जैसे एनटीपीसी के जो चीफ थे वो करप्शन के लिए बुक हो गए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन थे वो करप्शन के लिए उनको भी बुक किया गया. ही वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सो दे वुड नॉट बी एलिजिबल. Fourth, if he or she is a part of the management division of any child care institution in any district. Just give me a minute. Done. Now, give the heading additional functions of district magistrate. Additional functions, let me just tell you the structure also. Have to add some slides. Additional functions of district magistrate with regard to child welfare committees or with regard to juvenile justice system in the state, right? Supervising the district child protection unit. Supervising the district child protection unit. Child in need of care and protection. Child, first of all, child in need of care and protection. Then child in conflict with law. After Nirbhaya rape case, our knowledge with regard to this topic is there, right? Everybody understands, but we are here. Somebody reminded of my school days. If somebody puts a compass when somebody is about to sit, right? So that child would be for a child in need of care and protection. He would go to supervision under this. किसी ने किसी को ज़्यादा मार दिया स्कूल में वो सब. यहाँ पे conflict with law is somebody who is involved in some heinous crime as grave as molesting a woman, etc., etc. Right? Now, for here, we have child welfare committees. To deal with this kind of a chap, we have Juvenile Justice Board. They give the punishment, they just put the child under custody for care, right? मतलब किसी ऐसी institutions जो बनी हुई हैं state में, ठीक है, open shelter जिसे बोलते हैं, children's home,
और स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी। ठीक है, यहां पे इसके नीचे क्या है, ओपन शेल्टर। ओपन शेल्टर इज वन, जिसमें चाइल्ड को कस्टडी के लिए भेजा जाएगा। देन सेकंड इज कॉल्ड चिल्ड्रंस होम। द मूवी दैट आई वाज टेलिंग यू, सो यूपीएससी आस्क्स द क्वेश्चंस कि शुड मतलब मैंने ये अपनी पॉलिटी की पीपीटीज में भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है कि क्या मूवीज माफ करना, क्या मूवीज साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट करेंगी या साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट होने के बाद मूवीज देखी जाएं, राइट? शुड मूवीज जैसे OMG 2, it is on children, I guess, right? So when I get to know, okay, there is some new element to it, as a teacher, as a student in me, I would want to go and watch that. ठीक है? So you should also be exposing yourself to editorial. देखो, सबसे लाइफ में लर्न कर रहा है हमें ना, सबसे बढ़िया तरीका होता है काम करने का, किसी चीज को लर्न करने का, शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल में हम लर्न कर ले। बट उसके लिए क्या चीजें हैं? बुक्स। Books come into play after you have gained certain exposure in life. ठीक है, जॉब कर लिया या ऑलरेडी IAS ऑफिसर्स जो हैं उनको समझ में आ जाएगा उस लाइन से क्या कह रहा है, ठीक? बट हमें उस चीज को विजुअलाइज करने के लिए क्या करना होता है? मूवीज। सो दैट इज व्हाई आई कीप टेलिंग यू अबाउट द मूवीज एंड ऑल, जो थोड़ा सा एक फ्लेवर लेके आती हैं आप में वो समझने का। जैसे इंसेप्शन मूवी है, राइट? और भी बहुत सारी मूवीज हैं, जैसे कोविड के बाद भी कोविड के ऊपर मूवीज बनी कि आगे क्या हो सकता है या जो भी है। तो चिल्ड्रंस होम इज वेरी वेल डिपिक्टेड इन द मूवी किंग अंकल, राइट? उसमें वो दिखाया गया है कि हाँ कैसे ये स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी या चिल्ड्रंस होम काम करता है। अब यहां पे आ जाएगी स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी। स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, जो बच्चे छोटी मोटी हरकत करते हैं, कुछ ज्यादा जिन्होंने बवाल नहीं किया, राइट? कि मतलब जैसे स्कूल्स में हम बच्चों को देखते हैं, कईयों को हैबिचुअल स्टीलिंग की आदत होती है, पेंसिल चुरा ली, कुछ चुरा लिया, कुछ चुरा लिया, राइट? तो उन बच्चों को इस इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाएगा। किसी ने किसी को पत्थर मार दिया स्कूल में, बहुत ज्यादा मार दिया, जैसे बोलना नहीं चाहिए, दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे हैं लेकिन बाकी जगह पे गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीजें हो जाती हैं, तो उस चाइल्ड का, उस बच्चे का पूरा करियर खराब नहीं हो जाए, राइट? उसको हमने हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है वो क्या है? वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल। वैसे जो प्रोवर्ब है दैट इज वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप, बट इन सिंघम 2 ही शोज कि अगर इनको मैंने एक बार जेल में डाल दिया, इन बच्चों को, जो ब्रिज वाला शायद सीन है, वो रोड के ब्रिज पे किसी पे खड़े होते हैं तो ही सेज कि नहीं इनको जाने देते हैं। व्हाई? बिकॉज दे वुड वंस एंड फॉर ऑल बी लेबल्ड एज criminals and then they would become hardened criminals. That is why, to not to put them in the jail etc, jail of the common prisoners, they are separated from it, right? ये हो गया। देन इस तरफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है उनसे थोड़ा स्ट्रिक्टली डील करने के लिए। अब यहां पे क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होम, सी दी वोकैबुलरी गेटिंग चेंज्ड, ठीक है? स्पेशल होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी। ऑब्जर्वेशन होम, place of safety. Why is it called place of safety? Because child would be safe over here. Done? Just give me a minute. I'm just thinking how to inform the other aspect of it. How to explain to you.
just try to understand in this way. सबसे पहले अगर कोई बच्चे ने कोई क्राइम करा है तो पुलिस जॉब इज द जॉब ऑफ द पुलिस इज टू फाइंड जुवेनाइल एलिजिडली इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन टू डिटरमाइन इज if the juvenile is in conflict with law or not, right? For that, what do they do? Is offense serious? Is the offense committed by him serious or no? Right? Who would determine this? Yes, no. JAICWL mainly needs the protection and hence to be apprehended. ठीक है, अब यहां पे इसके लिए क्वेश्चन रेफर करा जाएगा एक बेंच को, वो रेगुलर जुडिशियल बेंच नहीं होगा. ठीक है, पहले तो उसका देखा जाएगा कि पीछे हिस्ट्री क्या है. इफ द हिस्ट्री इज सच दैट ही हैज बीन कमिटिंग सच ऑफेंसेस, कभी मनी लॉन्ड्रिंग, कभी किसी को छेड़ दिया, कभी किसी की पिक पॉकेटिंग कर ली, राइट, तो उसके बेसिस पे राइट ये सारी चीजें डिटरमाइन करी जाएंगी. तो जुवेनाइल मेनली नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एंड हेंस नीड्स टू बी एप्रीहेंडेड. एप्रीहेंडेड का मतलब क्या होता है कानून में? The person is apprehended. It is, ये शक है कि इसने ये क्राइम किया है. The person is apprehended to have committed the crime. ठीक है, अब इसके लिए क्या चेक किया जाएगा? Yes और no. तो उसके लिए ये पैरामीटर्स इन्होंने डिटरमाइन करे हैं. एक्सटेंसिव डिस्कशन डेलिब्रेशन जो डेमोक्रेसी में होती है, उसके बाद नंबर 1 सोशल बैकग्राउंड. ठीक, उस चाइल्ड का सोशल बैकग्राउंड क्या है? जैसे हैबिचुअली ऑफेंडर्स बैकग्राउंड से आता है, उस ट्राइब से आता है, राइट. देन दूसरा सर्कमस्टांसेस ऑफ एप्रीहेंशन. सर्कमस्टांसेस ऑफ मतलब क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें ये शक किया जा रहा है? सर्कमस्टांसेस ऑफ एप्रीहेंशन. सर्कमस्टांसेस, कीप राइटिंग, आई मे नॉट बी एबल टू राइट फुल. सेकेंड पॉइंट, सर्कमस्टांसेस ऑफ एप्रीहेंशन. ठीक, देन थर्ड इज ऑफेंस एलिजिड. थर्ड इज ऑफेंस, क्या ऑफेंस है? मर्डर है, कुछ है, राइट. Let me just do one thing. Let me put it on a PPT and share here. That will make the job easier for you and for me as well. Just allow me a minute. तो ये जो हम डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं, इसी के अराउंड कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं जब कुछ कंट्रोवर्सी होती है, थोड़ा डिटेल में हो गई, राइट. स्टूडियो वाली आईडी पे एक पीपीटी भेजी है जिसपे सिर्फ जुवेनाइल लिखा है. उसको लैंडस्केप मोड में एक ही शीट निकलेगी, प्रिंट आउट लेके दोनों स्टूडेंट्स को दे दो और वो उस पे इन स्टूडेंट्स के साथ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दो, करंट अफेयर्स वाले. ये जो लॉ फर्म्स होती हैं जो जुवेनाइल के मैटर में एक्सपर्टीज गेन करती हैं, ठीक है, उनके उससे ये हैंड आउट लिया था मैंने काफी टाइम पहले. Just to give you an idea so that you are able to attempt the question.
Now see here. Find that juvenile allegedly in conflict with law. Is it fairly visible online? ठीक है. Juvenile allegedly. Is the offense serious? If no, then JAICWL, juvenile who is allegedly in conflict with law, mainly needs protection and hence to be apprehended. ठीक. अब नो का आंसर ए क्या होगा? रिकॉर्ड क्या है? इन केस डायरी ऑफ जुवेनाइल. डायरी मतलब पहले से हिस्ट्री, उसकी डायरी चल रही है कि वहां के जो लोकल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये बार बार कटघरे में आता है, शक के दायरे में आता है. ठीक. तो उसका सोशल बैकग्राउंड देखेंगे. जैसे एज आई टोल्ड यू, सम वॉच इंसिडेंट हैड हैपेंड, है ना. तो वी वेंट टू दिस with due respect to the nearby JJ colony, right? So what happened is they would check कि अच्छा कोई ऐसे ट्राइब को वो बच्चा बिलोंग करता है जैसे दिल्ली क्राइम सीरीज 2 में दिखाया गया है, right? थोड़ा सा मूवीज वगैरह थोड़ा, मैं इकलौता ऐसा टीचर होऊंगा जो मूवीज देखने को बोल रहा हूँ, बट इट एनहांसेस योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो तेरे नाम देखने बैठ जाओ, मतलब हाँ थोड़ा बहुत यूपीएससी के नाम देख लिया करो, राइट? सो ऑफेंस एलिजेड, क्या ऑफेंस किया है उसके बेसिस पे भी देखा जाएगा कि वो बच्चा जो है सही है या गलत. एप्रीहेंडेड मेनली फॉर प्रोटेक्शन, मतलब ये शक है कि उस बच्चे को प्रोटेक्शन की जरूरत है. ठीक है, यानी कि उसने क्या किया है, सेल्फ डिफेंस में कुछ किया हो, है ना. एक लड़का और एक लड़की जुवेनाइल हैं, वो जा रहे हैं, लड़की को किसी ने छेड़ा, लड़के ने उस लड़के को पत्थर मार दिया, उस गैंग के मेंबर को पत्थर मार दिया, राइट? अब वो बच्चे के पीछे पूरा गैंग लगा हुआ है. समझ में आया? एप्रीहेंडेड मेनली फॉर प्रोटेक्शन, वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस में प्रोटेक्ट कर रहा था. तो अब उसको क्या करा होगा, ये सारा रिकॉर्ड पुलिस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सबमिट कर देगी. ठीक. नाउ हाउस इन विद टू प्रोवाइड सेफ्टी, रजिस्टर्ड वॉलंटरी. हाउस इन मतलब क्या है, हाउस द चाइल्ड इनटू रजिस्टर्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बच्चे को प्रोटेक्ट करने में. अब इनको सरकार ने अच्छी खासी जमीन दी होती है, ठीक, उनमें कैंपस होगा. मूवीज या कहीं पे भी देखना, विजुअलाइज करोगे जब कोई सीरियल्स में भी, जैसे मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, तो अच्छा खासा वहां प्लेग्राउंड और ये सब होगा ताकि वो बच्चा अपनी सेफ्टी भी रखे और उस पे जो 3-4-6 महीने उसका कंडक्ट ऑब्जर्व करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ जो सिंपैथी दी जा रही है वो उसका फायदा उठाने लग जाए, राइट? रजिस्टर्ड विद देन फिट पर्सन, और ही वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ फिट पर्सन. इफ ही वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ फिट पर्सन देन ही वुड बी अलाउड टू गो. ठीक. अब ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की ड्यूटी है कि वो इसको कैसे लेते हैं केस को. उनके सामने ये सारा रिकॉर्ड पेश किया जाएगा. ठीक. नाउ अब अगर यहां से ये चीज हो गई, डिटरमाइन कर दिया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मुकर्रर कर दिया कि भाई या तो ए होगा या बी होगा. उसके बाद एस्कॉर्ट दी जुवेनाइल हु इज एलिजिडली इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. ठीक. देन जेजेबी सिटिंग दैट डे, यस और नो. ये थोड़ा डिटेल्ड हो गया, ठीक है, ये लीगल फॉर्म का है तो थोड़ा डिटेल में है. अब जेजेबी पासेस इनिशियल ऑर्डर. क्या इनिशियल ऑर्डर है? हाउस दी जुवेनाइल इन और विद और रिस्टोर टू होम विद पेरेंट्स और गार्जियन. ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में हमारे लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्या जरूरी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ये सारा मुकदमा चल रहा है. द एंटायर ट्रायल इज गोइंग टू हैपन बिफोर जुवेनाइल justice board, right? Getting it shared, is it? No, it's not that visible. ये शेयर कर दिया, पीडीएफ कर रहे. It will be shared in a minute or two, right? ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक? तो ये सारा प्रोसेस रिकॉर्ड दे दिया. अब इनके सामने 2 क्वेश्चन रख दिए कि भाई क्या होगा. उसके बाद या जेजेबी सिटिंग चल रही है उस दिन, अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, अब ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, एक लीगल मेंबर हो गया, वो वही जज होता है
जो सोशल इश्यूज से डील कर रहा होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी ट्राइब्यूनल टाइप ये काम करता है, ठीक है। अब हो सकता है इसके मेंबर अपने अपने कोर्ट्स में लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई लॉयर है, कोई विमेन जेंडर इश्यूज पे लॉयर है, जिन्होंने कुछ सोशल इश्यूज पे कर रखा होता है, तो उनकी सिटिंग डेली नहीं होती, ठीक। तो अगर उस दिन सिटिंग हो रही है तो उसी दिन जेजेबी के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, उसी दिन जेजेबी संज्ञान में लेते हुए, टेकिंग दी रिकॉर्ड इनटू कॉग्नाइजेंस, टेकिंग दिस रिकॉर्ड इनटू कॉग्नाइजेंस, व्हाट जेजेबी वुड डू इज, taking the record into cognizance, what JJB would do is JJB would pass initial order कि what is to be done with the child, ठीक, कि अभी के लिए based on the record prima facie मतलब देखते हुए, on the face of it record को देखते हुए ये लग रहा है कि हाँ इस बच्चे को होम घर भेजा जा सकता है with parents और guardian और registered voluntary organization, or he could be declared as a fit person, or he should be assigned to an observation room, home, children's home if apprehended mainly for protection. अब यहां पे देखो चिल्ड्रन होम अलग बना हुआ है, ऑब्जर्वेशन अलग बना हुआ है, ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अलग है। डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम और डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द एलिगेशंस एट दिस स्टेज, बच्चे को कहां भेजा जाएगा वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करेगा। फॉर अ मिनट let me ask you, juvenile justice board decides the matters of what type of children? In conflict with law. JJB उन बच्चों के मैटर्स पे सुनवाई करता है जो बच्चे are in conflict with law, right? ठीक है। अब आगे JJB बाद में जब if order is changed, ये तो प्राइमा फेसाई हो गया, देखो कितना डिटेल में इस लॉ फर्म ने समझाया हुआ है कि अगर उसी दिन जेजेबी की सिटिंग है तो सामने पेश किया जाएगा, और जेजेबी इनिशियली उस ऑर्डर को रेटिफाई करेगा, राइट, ठीक है ना, कि इनिशियली ये दे दिया, ऑर्डर को रेटिफाई नहीं किया, इनिशियली असाइन कर दिया उस बच्चे को कहीं पे, डन। अब इसके बाद जेजेबी ने इनिशियल ऑर्डर पास किया, अब बाद में जब डिटेल्ड हियरिंग हो रही है डे टू डे या वीकली बेसिस पे, जेजेबी अपने ऑर्डर को रेटिफाई करेगा, ऑर्डर ऑफ द सिंगल मेंबर, और चेंजेस इट एट द नेक्स्ट सिटिंग। इफ ऑर्डर इज चेंज्ड, हैव यू रिसीव्ड द हैंडआउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डन। अब उसके बाद प्रोड्यूस बिफोर अ सिंगल मेंबर ऑफ द जेजेबी, सिंगल मेंबर ऑफ द जेजेबी पासेस द टेम्परेरी ऑर्डर, टेम्परेरी ऑर्डर के बाद ये हो गया, फिर डिटेल्ड ऑर्डर रेटिफाई हो रहा है, ठीक है ना, सिटिंग में, ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके। अब यहां से देखते हैं इज द ऑफेंस सीरियस, तो यहां से हम नीचे डाइवर्ट हो गए थे येलो वाले कॉलम में, येलो वाला हमने पूरा कर लिया, ठीक। अब हम चल रहे हैं यहां, इज द ऑफेंस सीरियस, यस, तो जुवेनाइल allegedly in conflict, I am at this side here, agar juvenile is apprehended by the police to have committed a serious offense, is the offense a rape or murder, right? If no, record in diary, if yes, register FIR, ठीक। अब दोनों केसेस में इन्फॉर्म JWO CWO at SJPU, स्टेट जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट, यहां पे देखोगे स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ठीक है, SCPU। अब इसका भी पूरा हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, अभी मैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बना दूंगा इसके बाद। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अब यहां पे हम किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं? JWO को। नीचे इसकी एब्रीविएशंस दे रखी हैं, उसको चेक करोगे, JWO मींस जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, ठीक। अगर बच्चे ने सीरियस ऑफेंस किया है, यूपीएससी में मान लो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन है, या तुमसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चे को तब कहां भेजा जाएगा, तब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है, तब सीरियस क्राइम है, पहले JWO जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर और CWO, दीज आर मेनली, एज आई हैव सीन थ्रू द न्यूज़पेपर रीडिंग, दीज आर मेनली फीमेल्स, ठीक है, और देयर इज अ टीम ऑफ मेल एंड अ फीमेल, राइट।
at SJPU. SJPU क्या है? स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, स्टेट जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट, इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। SCPU दे रखा है एब्रीविएशंस में, लेकिन SJPU मींस दी सेम थिंग। देन पेरेंट और गार्जियन को भी इंफॉर्म करना है, तीनों को इंफॉर्म करना जरूरी है। देन प्रोबेशन ऑफिसर एट SJPU और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। हर डिस्ट्रिक्ट में अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शुड बी अ DJPU और DCPU, डिस्ट्रिक्ट जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। कौन होता है ये? डीएम, ठीक। इसीलिए डीएम को आप देखते हो ना कि घूमते फिरते वो जो रील्स बनाते रहते हैं, एक दो टॉपर्स जो भी है ना, तो ये एक डाइवर्सिटी इन रूटीन आ जाती है कि हाँ आज हमारे जिला अध्यक्ष ने यहाँ का मुआयना किया, फिर न्यूज में आता है ना क्या करके आए, बच्चों को लॉलीपॉप दे के आए, चॉकलेट्स दे के आए। दिस इज व्हाट दे डू, राइट। सो गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स और गार्जियन अबाउट द केस। अब यहाँ पे जो स्टेज सबमिट रिकॉर्ड टू जेजेबी, इसमें जो हमने पढ़ा पहले यहां पे आ रहा था, अब यहां पे 2-3 स्टेप्स के बाद ये रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। पहले हमने JWO को रेफर कर दिया, ऐसे बच्चे को जिसने एलिजिडली एप्रीहेंसिवली हीनस ऑफेंस किया है, रेप या कुछ ऐसा, ठीक। फिर रिपोर्ट JJB को ही जाएगी, लेकिन JJB इज कमिंग इनटू पिक्चर ओवर हियर एट अ लेटर स्टेज, ठीक है। देन यहां तक हो गया रिपोर्ट टू JJB। अगर यस, हमने कौन सा क्वेश्चन डील कर रहे थे? यस, कि हाँ उसने सीरियस ऑफेंस करा है। अब यहां से टर्न लेते हैं, इज द ऑफेंस सीरियस? यस। तो रजिस्टर FIR के बाद प्लेस जुवेनाइल हु इज एलिजिडली इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ अंडर JWO और CWO इफ अपॉइंटेड। यहां पे कॉशियसली लिखा है इफ अपॉइंटेड, नहीं अपॉइंटेड तो क्या करें? कई स्टेट्स में नहीं अपॉइंटेड है, क्यों? क्योंकि there is a term called as legal impact assessment, ठीक है, या judicial impact assessment, impact of a new law being passed on the judiciary, it increases the burden, ठीक है। किसी भी मुद्दे पे अगर आप कानून पास कर देते हो तो क्या हो जाता है? जुडिशरी पे बर्डन इंक्रीज हो जाता है, स्टेट्स पे भी हो जाता है। तो स्टेट्स ये बोलती हैं कि हमें पैसा नहीं दिया, ग्रांट्स नहीं दी। एवरी न्यू लॉ बीइंग पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट on the matter of crime and criminology is going to increase the burden of the state government. Law तो नीचे implement होगा ना, इसलिए district collector is considered to be, PubAd में question आता है public administration में, district collector is an ant who is handling elephant. district collector एक चींटी है जो elephant को handle कर रही है, ठीक। तो ऐसे से क्वेश्चन तभी बनते हैं क्योंकि सारा कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके इंप्लीमेंट होगा। तो जुवेनाइल DCPU कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक। तो ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? JJB दूर है या पास? अब जिला ये जो JJB बनते भी हैं ये डिस्ट्रिक्ट में होते हैं या तहसील में होते हैं। अब यहां तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। हेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली। अगर यस तो JJB सिटिंग दैट डे कन्वर्ज हो रहा है, टेबल कन्वर्ज हो गया। इफ नो, हाउस इन और टू प्रोवाइड सेफ्टी, रजिस्टर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो उस तहसील में हो, हर सिटी में JJB नहीं हो सकता। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स को सैलरी मिलती है, ऑनोरेरियम मिलता है, ठीक है। तो हर JJB हर सिटी में तो नहीं बना सकते। अब अगर कहीं दूर है तो फिर रजिस्टर्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सारा चार्ट रिमेन्स दी सेम। समझ में आ गया? अगर हीनस ऑफेंस करा है, मैं एसेंस बता दे रहा हूं, तो JWO और CWO विल कम इनटू पिक्चर। ये किसके अंडर होते हैं? SJPU के। अब इसका भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, SJPU और इसका, ठीक है। इसको थोड़ा थरोली एक बार पढ़ लो, नीचे एब्रीविएशंस वगैरह, टेक 1 मिनट। Worst society is a society which criminalizes or declares its children as criminals, है ना। इसीलिए इस पे इतनी ज्यादा रिसर्च करी गई जितनी एडल्ट्स के मैटर पे रिसर्च नहीं करी गई। गॉट इट?
क्योंकि एडल्ट्स वाला तो चलो ठीक है, दे हैव स्टिल लिव्ड देयर 25 और 30 इयर्स, बट एक बच्चे का लाइफ खराब कर देंगे तो फिर उनके पेरेंट्स के पास भी कोई मोटिवेशन नहीं रहता कमाने का, काम करने का, है ना, पूरे सोसाइटल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा. डन. Now write down the composition of Juvenile Justice Board. Have you written this before? No. Composition लिख लिया था हमने. Judicial Magistrate of First Class, JJBs are meant to resolve cases within a period of 4 months. Details नहीं लिखी हुई, ठीक है. हाँ, details मैं बता दे रहा हूँ, लिख लो. Now, हाँ, इसके नीचे लिखे थे, आई कैन सी दैट इन माई नोट्स, ठीक है. सो अभी सिर्फ एक चीज, एक लाइन लिख लो, बाकी सारा हमने लिखा हुआ है. JJBs आर मेंट टू रिजॉल्व केसेस विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months. ठीक है, दे आर एक्सपेक्टेड टू रिजॉल्व केसेस विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months. In most of the cases, juveniles can be released on bail by the JJB. In most of the cases, juveniles can be released by the JJB on bail. Now write down, what is child care institution? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन मींस चिल्ड्रंस होम. देखो इसमें कितने प्रकार की चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस डिक्लेयर्ड हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं एक वैसे. जो अभी मैंने बताया ना कि ओपन शेल्टर, ऑब्जर्वेशन हाउस, लाइक दैट, ठीक है. चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन मींस चिल्ड्रंस होम, children's home, open shelter, observation house, special home, place of safety, and a fit facility recognized under this act. ठीक है, अब यहां पे fit facility, अब देखो फिट फैसिलिटी का मतलब क्या है कि उसमें अगर कोई ल्यूनाटिक है, मान लो तेरे नाम टाइप हो गया कोई, ठीक है, कभी एकदम बरसर्क हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, कुछ तोड़ने मारने लगता है किसी को, तो वहां पे जेल वगैरह टाइप फैसिलिटी भी है, सो दैट ही कुड बी, हिज हैंड्स कुड बी टाइड, ठीक है, हथकड़ी वगैरह पहनानी है, बांध के रखना है, या इलेक्ट्रोक्यूशन, तो ऐसी फैसिलिटीज फिट फैसिलिटीज हैं. वहां पे नर्सिंग एंड केयरिंग भी है, प्लस
किसी के अग्रेसिव बिहेवियर को टैकल करने के लिए वो भी है, ठीक है, फैसिलिटीज हैं, लोग हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्राइम एंड नेचर ऑफ द कन्विक्ट ये करा जाएगा, राइट। Now the good thing about JJ Act is that it allows the government agencies, government facilities and non-government facilities to be recognized. ठीक है, Section 2 of Juvenile Justice Act, Section 2 of Juvenile Justice Act deals with the compulsory registration of such facilities. Point number next हो जाएगा. Juvenile Justice Act allows institutional facilities for children to be set up by both government and non-government organizations. To be set up by both government and non-government done. However, as per law, all the CCIs, whether they are, however, as per law, all the child care institutions are required to be compulsory registered under JJ Act within 6 months of JJ Act 2015 having been enacted. However, as per law, all CCIs are required to be compulsorily registered under the Juvenile Justice Act within 6 months of the JJ Act having been enacted, or within 6 months of JJ Act coming into force. जिस डेट से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है, ये सारी इंस्टीट्यूशंस का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जरूरी है. ठीक. Even those institutions that are not receiving government funds are required to be registered. Even those institutions which are not receiving government funds are required to be registered. So, अब जैसे क्वेश्चन आता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juvenile Justice Act recognizes 6 types of child care institutions. ये पता होना चाहिए, ठीक है. नंबरिंग कर लो, टोटल 6 लिख लो नीचे, पता हो, क्योंकि ऐसे भी 1-2 क्वेश्चंस आए हैं ना कि ये नहीं दे रखा कि सारों के नाम थोड़ी लिखेगी यूपीएससी, सिंपल पूछेगी 5 हैं या 6 हैं. ठीक. Done? Just give me a minute. All right, now the power to register, the power to grant registration or withhold it is given to the state governments.
The power to grant registration or withhold it is given to the state government. ठीक है. The state government can even cancel the registration. The state government can even cancel the registration. Next point है. The state government can even cancel the registration if the necessary standards as laid down in the law are not met. Done? Penalty for non-registration. Next point. Next main heading. मतलब इसी के अंदर ही. As per the JJ Act, the persons in charge of such institution, as per the JJ Act, the persons in charge of such institution which avoids or is not registered, which avoids registration, can be punished with the which avoids or is not registered, which avoids registration or is not registered. समझ में आ गया? ठीक है. Shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or a fine not less than 1 lakh rupees. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? फाइन अगर लगेगा तो 1 लाख रुपीज लगेगा. ये नहीं लिखा फाइन अप टू. ठीक है. See here the stringency of the words being used. फाइन अप टू लिखते तो ये होता है कि 5,000 रुपये लगा के छोड़ दिया. ठीक है. फाइन ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज. अब जज के ऊपर ये हो जाएगा कि भाई अगर जान के अवॉइड कर रहे हो, गोरख धंधे कर रहे हो, वहां से बच्चों को स्मगल कर रहे हो, राइट? As it is a continuing offense, as it is a continuing offense, continuity में लिख रहे हैं हम, delay of 30 days in moving an application for registration, as it is a continuing offense, delay of 30 days in moving an application for registration from the date of establishment, delay of 30 days in moving an application. मतलब समझ में आया? एप्लीकेशन को मूव करने में 30 दिन से ज्यादा अगर लगा दिए, और from the date when the renewal of registration becomes due, from the date when the renewal of registration becomes due, comma, will be considered as a separate offense. ठीक है.
ये ड्रॉ कर लिया सबने? दिस वन इज ड्रॉन बाय एवरीबडी ऑनलाइन. अब इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं. फॉर CCL, फॉर CCL, CCL का मतलब क्या है? फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. ठीक. ऑब्जर्वेशन होम्स, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी. ठीक है. थर्ड फॉर CNCP. व्हाट इज CNCP? चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. राइट. यहां पे क्या आ जाएगा? चिल्ड्रंस होम, ओपन शेल्टर. थर्ड इज स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी. थर्ड इज स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी. Done. Now write down observation home. अब जो हम लिखने जा रहे हैं उससे ये पता लग जाएगा कि कौन सी एजेंसी को कहां पे एस्टैब्लिश करना है, किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कहीं पे. ठीक है. ऑब्जर्वेशन होम means an observation home established and maintained in every district or a group of districts. Simple लिख लो, in every district or a group of districts by a state government. Established and maintained in every district or a group of district by a state government, comma, either by itself or through a voluntary or NGO, voluntary organization or a non-government organization. अब ये तो हमें पता ही है कि रजिस्ट्रेशन हर एजेंसी के लिए, हर ऐसी इंस्टीट्यूशन के लिए कंपलसरी है. ठीक. सेकंड, स्पेशल होम. means an institution established by a state government or NGO, means an institution established by a state government or an NGO, comma, for housing and providing rehabilitative services to children in conflict with law, for housing and providing rehabilitative services to children in conflict with law. ठीक. comma, who are found to have committed an offense. Who are found to have committed an offense and are sent to such institution
by an order of the board and are sent to such institution by an institution or board. Done. Third, place of safety. Place of safety means any place or institution. Place of safety means any place or institution, comma, not being a police lockup or jail. ठीक है, अब जो मैं पुलिस लॉकअप और जेल लिखवा रहा हूं उससे तुम्हें ये पता लग जाना चाहिए कि प्लेस ऑफ सेफ्टी इज अनदर नेम फॉर जेल ओनली फॉर दीज किड्स. ठीक है, अब होगा पता है क्या, मतलब उसको ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसका लोहे का दरवाजा है, एक खिड़की है, खिड़की की जो ग्रिल है वो सरियों की है, सरिया होता है ना, आयरन रॉड्स, जेल जैसी, उसमें रोशनी आ रही है, सब कुछ आ रही है, पंखा लाइट अच्छे से दे दिया, बढ़िया, बस ताकि वो जेल नहीं लगे. ठीक, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं वहां पे कॉटन वगैरह कुछ नहीं देते, बिकॉज दे एनगल्फ कॉटन एंड ऑल सो एज टू सफोकेट देमसेल्व्स एंड देन दे डाई. तो और कुछ नहीं होगा, हालात वही होते हैं मोर और लेस, बट उसको एक सेम्बलेंस ऑफ, मतलब एक ऐसा अमली जामा दिया जा रहा है कि वो अच्छा लगे सुनने में और ये सब. ठीक, means any place or institution not being a police lockup or jail established separately or attached to an observation home. Established separately established separately or attached to an observation home or a special home. ठीक है, अब यहां पे इसका जो पर्सन इंचार्ज होगा वो he should be able to take care of children in conflict with law assigned to such institution by juvenile justice board. वो हमने फ्लो चार्ट में देख लिया. ठीक है, तो पहले फ्लो चार्ट को समझना जरूरी था, हमने समझ लिया. ठीक है, so this is there now, both during the inquiry or ongoing. अब इसमें इसके पर्पस क्या है, रिहैबिलिटेशन, ब्रैकेट में लिख लो पर्पस रिहैबिलिटेशन. ठीक है, पर्पस डैश रिहैबिलिटेशन, सिंपल. ठीक है, नाउ चिल्ड्रन आर असाइंड टू पीओएस बाय, नेक्स्ट लाइन में लिखो चिल्ड्रन आर असाइंड टू प्लेस ऑफ सेफ्टी बाय कॉलन. थोड़े से ऐसे नोट्स बना रहे हैं कि मेमोराइज कर सकें. ठीक है, बाय चिल्ड्रंस कोर्ट और जेजेबी. डन. Now write down the heading institutions for CNCP. Institutions for CNCP. या इसको एक बार कट कर दो, सॉरी फॉर दिस. पहले ये लिख लो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ
composition and purpose of observation home, then what is the composition and purpose of special home, what is the purpose and composition of place of safety. समझ में आया? ताकि सीक्वेंस लॉजिकल बन जाएगी. हम ये भी कर सकते थे कि पहले इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर सीएनसीपी कर लें, बट वो थोड़ा लॉजिकल नहीं होगा. ठीक है. सो observation home, purpose of observation home, composition and purpose of observation home. ठीक है. अब यहां पे लिखोगे कि टेम्प फॉर पर्पस क्या है, पर्पस लिख लो, पर्पस कॉमा पर्पस कॉलन टेम्परेरी रिसेप्शन केयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एनी चाइल्ड. पर्पस कॉलन टेम्परेरी रिसेप्शन कॉमा केयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एनी चाइल्ड alleged to be in conflict with law. Alleged to be in conflict with law, comma, during the pendency of any inquiry. Pendency has to be underlined. ठीक है. तो मतलब समझ में आया? ऑब्जर्वेशन होम में जब तब तक रखा जाएगा जब तक इंक्वायरी चल रही है. ठीक है. यहां पे भी अगर हम देखें, सो दिस साइड शुड बी वी शुड कम टू. ठीक है. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को दिया तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये बोल देगा कि ऑब्जर्वेशन होम में भेज दो. यहां पे कोई और इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा है तो चिल्ड्रंस होम का लिखा है. ठीक है. चिल्ड्रंस होम का क्यों लिखा है? क्योंकि इफ एप्रीहेंडेड मेनली फॉर प्रोटेक्शन. लेकिन अगर उसने कोई हीनस ऑफेंस वगैरह कुछ किया होगा, यहां पे देख लो एक बार बोर्ड पे, ऑब्जर्वेशन होम में तब भेजा जाएगा जब जेजेबी ने इनिशियल ऑर्डर पास किया है. जब तक ट्रायल चल रही है, इंक्वायरी होनी है अभी, तो ऑब्जर्वेशन होम, नहीं तो चिल्ड्रंस होम. चिल्ड्रंस होम वी विल सी फर्दर. समझ में आ गया? ठीक है. नाउ एज ग्रुप. Classification and segregation of children will be done according to their age group. Classification and segregation of children will be done according to their age group. Preferably 7 to 11, 7 to 11 years, 12 to 16 years, and 16 to 18 years. ठीक है. Now, what is the composition and purpose of special home? Write down composition and purpose of special home. Next heading, composition and purpose of special home. Purpose for rehabilitation of those children in purpose colon for rehabilitation of those CCL capital children in conflict with law
who have committed an offense, who are found to have committed an offense. मतलब यहाँ पे pendency नहीं है, ठीक है? They have already been found to have committed an offense. Since we have time, so we are covering things in detail. All right. Prelims oriented facts भी cover हो रहे हैं और मेंस oriented analysis भी आगे आ जाएगा इनकी वर्किंग के ऊपर, ठीक है? तो my dear students, I would like to tell you here, there is no point in, static portion हमने कर लिया, social issues का करवा देंगे, ठीक है? लेकिन these are the issues which should be taught in this kind of a detailed manner in your social issues module also, right? क्योंकि child, अगर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, चाइल्ड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, पोक्सो है, इसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, राइट? तो ये जो 2-3 एक्ट्स हैं, अगर हमने सोशल इश्यूज में ये पढ़ लिया, फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन्स एक्ट, ट्रांसजेंडर्स एक्ट, डिसेबिलिटी एक्ट, दिस कवर्स द होल मॉड्यूल इटसेल्फ. देन देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. So you see a lot of barricades of Delhi police carrying the message that ड्रग फ्री इंडिया. क्या लिखा होता है? आजकल काफी ज्यादा हो रहा है, राइट? बिकॉज ड्रग menace is catching our country now. पंजाब, हरियाणा एटसेट्रा. तो ड्रग menace जैसी प्रॉब्लम है, सब्सटेंस अब्यूज एटसेट्रा, स्पोर्ट्स कल्चर. तो वो सोशल इश्यूज के ये टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. वर्क फ्रॉम होम हो गया सोशल इश्यूज का, जो मेंस में क्वेश्चन आया, राइट? सो जो कन्वेंशनल जैसे राम आहूजा और ये सब एक कुछ बुक्स बताते थे पहले, जो पैटर्न जस्ट चेंज हुआ था 2015, 16, 17, 18, तो वो बुक्स अभी भी मार्केट में दे कीप ऑन सेलिंग. अमेजन से किसी ने ऑर्डर कर दी यूपीएससी के लिए, उन्होंने टैग लगा रखा है इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, तो हमें लगता है परचेज कर लें, राइट? तो उसमें और कुछ नहीं है, फिलर नॉलेज है. इट गेट टू नो अबाउट सब्सटेंस अब्यूज होता क्या है, ये सब क्या है, ठीक है? बट वो हमें नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए? ये वाले टॉपिक. चाइल्ड मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है या उसकी डिस्कशन हो रही है, उसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे. Just telling you the contours, it will help those who are regular with the newspaper, ठीक है? ताकि बोर्ड पता हो, स्टेडियम पता हो कि कहां तक जाना है, राइट? ठीक है. Those who have been found to have committed an offense and who are placed there by an order of Juvenile Justice Board, who are placed there by an order of Juvenile Justice Board. अब यहां पे देखो, स्पेशल होम में सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऑर्डर पे ही भेजा जाएगा, चाइल्ड कोर्ट के, चिल्ड्रंस कोर्ट के ऑर्डर पे नहीं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंडर, where a JJB is satisfied on inquiry that a child, irrespective of the age, has committed a petty offense. That a child, irrespective of age, has committed a petty offense or a serious offense, or a child below the age of 16 years has committed a heinous offense, or a child below the age of 16 years has committed a heinous offense, comma, the board may, if it thinks fit, the board may, comma, if it thinks fit, comma, direct the child to be sent to a special home for a period not exceeding 0-3 years. इसमें 3 साल की सजा मिलेगी, राइट? For a period not exceeding 3 years.
comma, for providing reformative services. For providing reformative services, including education, skill development, रिफॉर्मेटिव सर्विसेज. रिफॉर्मेटिव सर्विसेज कहां दी जाती हैं? क्वेश्चन यही पूछेगा. स्पेशल होम. ठीक है. रिफॉर्मेटिव सर्विसेज सच एज एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी. behavior modification therapy. Behavior modification therapy during the period of stay in the special home. Next point, there shall be a separate special home. There shall be separate special homes. नहीं आएगा. There shall be separate special homes for girls above the age of 10 years. For girls above the age of 10 years and boys in the age groups of 11 to 15 and 16 to 18 years. Done. There shall be separate special homes for girls above the age of 10 years and boys in the age groups of 11 to 15 and 16 to 18 years. Done. Fourth, next point, classification and segregation of children will be on the basis of age. Classification and segregation of children, अगर ये ईयर्स याद ना आए या कुछ याद ना आए तो ये रेस्क्यू लाइन है. सिंपल इतना लिख देना. क्लासिफिकेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड नेचर ऑफ ऑफेंसेस एंड देयर मेंटल एंड फिजिकल स्टेटस. Done. Now next heading, composition and purpose of place of safety. Composition and purpose of place of safety. Composition and purpose of place of safety. Purpose. Colon. To ensure the care, treatment, protection and developmental process. To ensure the care, treatment, protection. To ensure the care, treatment, protection and developmental process of CCL. CCL means children in conflict with law. अब देखो तुम्हारा टास्क यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा. मैंने नोट्स दे दिए, तुमने काम कर लिया, ठीक है. घर जाके इसके रफ में कागज पे A4 पे थोड़ा सा नोट्स बनाओगे, यहीं इसको कॉन्क्रेटाइज कर दोगे. समझ में आ गया? एक काम करते हैं, कल का इकोनॉमी का लेक्चर रिवाइज करा था, सच में करा था, ठीक है. काम करते हैं, एक आई विल बी इंस्पेक्टिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी शायद थोड़ा मुश्किल होगी. जो भी क्लास में पढ़ेंगे अब से, तुम उसके मेंटल नोट्स, अपने स्केलेटल नोट्स
जो भी फ्लो चार्ट वगैरह बना के शेयर कर दोगे. Those of you who are connected with me either on Telegram or WhatsApp without naming the names, they can also do the same thing so as to ensure whether you are internalizing or not. ठीक है. अब ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है सारा लेक्चर अगर आप देखोगे. आई कांट हेल्प इट ईज फर्दर फॉर यू. आई कांट मेक इट इजियर बियॉन्ड दिस. ठीक है. अब इफ आई स्किप आउट ऑन दिस एंड टेल यू द जनरल टेक्स्ट, दैट ऑल्सो डजंट सर्व द पर्पस. सो आई हैव डन माई जॉब. नाउ इट इज अप टू यू कि इसके नीचे का पार्ट तुम अपने आप लिखो. इधर यू कैन डू दिस. ठीक है. और मेक पेंसिल से अपने नोट्स बनाओ. मेक नोट्स विद द पेंसिल. इसको ताकि तुम्हें याद करने में ये नहीं लगे कि पढ़ा ही नहीं, पहले पढ़ा था याद नहीं है, फिर वो स्टेज कभी नहीं आएगी. सेम अप्लाइज टू आर्ट एंड कल्चर, सेम अप्लाइज टू अदर सब्जेक्ट्स, पॉलिटी या कुछ भी. तो अब से आई विल बी चेकिंग द नोट्स डेली फॉर एवरीवन who is coming to the offline classes, whether you are reciprocating or not. Done? Now, place of safety mein purpose, to ensure the care, treatment, protection and developmental process of CCL who are above the age of 18 years. Or those who have committed heinous crimes, or those who have committed heinous crimes and are above the age of 16 years at the time of commission of crime. So Nirbhaya rape case convict must have been sent to place of safety. अब वहां से समझो, behind all the Nirbhaya rape case convicts, the regular prisoners were behind their life. है ना. दे वर लाइक किसी एक दो को तो मार भी दिया जेल में, राम जो भी नाम था उसका, है ना. तो प्लेस ऑफ सेफ्टी इसको कहना कितना अप्रोप्रिएट है. उसको बचा रहे हैं बाकी लोगों से, है ना. जैसे डॉक्टर तलवार थे हिम आरुषि मर्डर केस में. सो द जनरल पब्लिक वाज बिहाइंड हिज लाइफ. हमने यहां से शुरू किया है. टू एंश्योर द पर्पस, टू एंश्योर द केयर, ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ CCL who are above the age of 18 years. ठीक. और those who have committed heinous offense and are above the age of 16 years at the time of commission of offense. इसका मतलब ये है जो 18 साल से above है. आप कह रहे हो कि आपके कहने who are above the age of 18 years, तो उनको एडल्ट ट्रीट करना चाहिए, है ना. यू आर राइट, है ना. यहां पे लिखा जा रहा है कि स्टेज ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस 17-18 के बीच में है. ठीक है. और जब सजा सुनाई जा रही है तब वो 18 ईयर्स के हो गए. जो 18 ईयर्स का एडल्ट है, जब उसने क्राइम किया है तो वो तो एडल्ट ही ट्रीट होगा. लेकिन जो 17-18 का ब्रैकेट है, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते रह गए. ठीक है. लेकिन जिस दिन सजा सुनाई जा रही है उस दिन वो 18 ईयर्स का है. हु आर अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स. इट इज नॉट रिटन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस. इट इज अंडरस्टूड. ठीक. तो उनको इस में असाइन किया जाएगा. गॉट इट. नीचे वाले में हमने लिख दिया है who are above the age of 16 years at the time of commission of crime. ठीक है. so that removes the ambiguity. but when we are writing who are above the age of 18 years, ठीक है, वहां पे हमने ये नहीं लिखा कि at the time of commission of offense. वहां पे मतलब ये है at the time of awarding of sentence, at the time when they are being given the sentence. ठीक है. जो मतलब बीच में ब्रैकेट में रह जाते हैं ना, 17.5, 18 होने वाले, बर्थडे के दिन सजा सुनाई जा रही है, वो वाला केस. ठीक. सो डन. नाउ सेकंड पर्पस क्या है. सेकंड पर्पस, provided that the reformative services all those services above, alternate therapy, ठीक है, then behavior modification therapy etc. shall be provided during the period of stay.
ठीक है, अब इसमें थोड़ा लेंदी है, आगे आपका पॉइंट जिससे क्लियर हो जाएगा वो मैं लिखवा दे रहा हूं, आगे का नहीं लिखेंगे. Separate facility shall also be provided. Separate facility, next point it is, separate facility shall also be provided for keeping CCL alleged to have committed heinous crimes. For keeping CCL alleged to have committed heinous crimes and are above the age of 16 years. Or have completed 18 years of age and are above the age of 16 years, or have completed 18 years of age and have completed 18 years of age and the inquiry is pending before the board. अब समझ में आया? And the inquiry is pending before the board. Before the JJB लिख लो board की जगह. Or children's court as the case may be. Now write down next bold heading, institutions for CNCP. Institutions for CNCP. ये जब इसको कल कवर करेंगे, जब ये खुद तुम स्केची फॉर्म में उतारोगे ना इसको सारे अपना नोट्स में, तो तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि तुम्हें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि तुमने कर लिया. क्लास में कर दिया वो एक अलग बात है, ठीक, तुमने कर लिया, फिर उसमें जो सिली मिस्टेक्स होती हैं प्रीलिम्स के टेस्ट में वो नहीं होंगी. और इस बार का जो टेस्ट होने जा रहा है सैटरडे को, वो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा फ्रॉम द इकोनॉमी एंड द करंट अफेयर्स जो इलेक्ट्रिसिटी के हमने कवर करें. डिफिकल्ट इन द सेंस इट विल बी काइंड ऑफ निट पिकी, चेकिंग योर प्रिसीजन, कितनी सटीकता से तुम आंसर करते हो. ठीक है, so be prepared accordingly, be thorough with it. Today being Wednesday, I'm already telling you, Thursday, Friday, you have days, so prepare for that accordingly. ठीक है, so this we will be covering in the next class tomorrow. Wait for me to come again at 4:30 to start with economy class. Thank you guys. ऑनलाइन सारंदा, यूनेश, अर्पित तो ऑफलाइन आ जाता है, अर्शिका तो सैटरडे के टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे सभी. ये शिविन करंट अफेयर्स की क्लासेस क्यों नहीं ले रहा?